So today topic is document loader. Like we can load the text document, CSV document, image, PDF, and Wikipedia, also YouTube, and HTML. Or you can say mainly the web base or any web based HTML document and web base. First today topic, and then we'll move to next topic, the output person. Output person. Or we need JSON type output. So how we can define the JSON type output? And the third topic memory. Let's see how it happen. देखना पड़ा कितना कवर होगा, शायद इतना तक होगा। और इसके साथ एक छोटा प्रोजेक्ट इमॉल ईमेल रिस्पॉन्स एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बट यू कैन से दिस इज प्रोजेक्ट ईमेल रिस्पॉन्स। तो पहले टेक्स्ट लोडर, फिर CSV, then image, then PDF, then Wikipedia, then YouTube, then HTML, then web page. This type of loader. Also, we have like PPT loader, PPT, docs, and there's any file left, any document, .csv, .img, that is image, .jpg. Is there any file left, any type? Dot like video. Okay, MP3 like song and MP4 video. Okay, there's all the type of loader we'll see. First, mainly focus this one. Then we can focus this PPT, talks, MP3, MP4. First, focus this. So first, we need to create, like first create the virtual environment. It is the basic. Create virtual environment. Okay. And I'm writing J3 dot I3YMD file and port and write any print statement hard and select the virtual environment. Okay. First, we'll see the load of text data. Text data loader. For every loader, you can find we need library. So, like for the text loader, we have the library text loader or function. Basically, if you need like text loader, the library found from the LangChain document loader. We have LangChain dot document loader, and from the document loader, we need to import the first I text loader. So text txt text loader. If you need like PDF loader, then PyPDF loader. But there's a different type of PDF loader. I will teach the PyMG. First, we need to basic one. Then I will teach that. PyPDF loader. If I want CSV loader, CSV loader. If I want web-based loader, web-based loader. Okay, there's a different kind of loader present. And first, I'll one by one. First, this text loader. Okay. Now there's a text. If we have any text data, first I don't have any text data. I'll create one sample text. Sample.txt. Or you can get sample text and I'll paste some data. Like what will be data? Yes, I'll do it. And it's some data. Just copy some text data and paste it. Yes, some data I have pasted. That is sample text. I know बिकॉज इन यार प्रोग्राम देख, जब प्रोग्राम लिखा है तब तुझे कभी कोई डेटा का जरूरत पड़ेगा, तेरा डेटा लोड करने में कोई स्पेसिफिक डेटाबेस से, तो तुझे डेटा लोड करना सीखना पड़ेगा। तू चाहता है इस टेक्स्ट जो डेटा है उसका समराइज करके कुछ आंसर चाहता है तू, तो उसका समराइज करके दो। तो अगर ऐसा कुछ आंसर चाहिए तो टेक्स्ट डॉट लोडर को पहले लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डेटा को पहले छोटा कर दो, बाद में तुम सैंपल टेक्स्ट। ठीक।
इतना डेटा काफी है। चलिए पहले लोडर को लोड करना चाहिए, तो फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम, फाइल नेम। तो फाइल नेम कौन सा है मेरे पास? सैंपल डॉट टीएक्सटी। अब लोडर को लोड करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं बनेगा, एक लोडर, एल ओ, फंक्शन का नाम। और कौन सा लोडर? मुझे टेक्स्ट लोडर बोलते हैं, टेक्स्ट लोडर, टेक्स्ट लोडर ऑफ फाइल नेम। तो फाइल का पाथ देना पड़ता है, गिव द फाइल। So what is the file path? Just file name is the file path and language. It is load. If we fill the loader, it will fill the LangChain document loader. Okay. अब मुझे text चाहिए से, I need the exact text. So loaded the text. Loaded text. So कैसे लोड कर? loader dot load. This one. Loading Stanford error. Right. This one. Loader dot load. Why this error? LOADER loader. Just 1 minute. There's this some character like code. ठीक है. So there's this some problem with the character. This one. I believe some character. The problem is some character. Like there's some character actually not defined. So sometimes it will be like error if there's a miss character, any character which is not present. Just control S and try again. And now actually load it. So we say some text actually type. And now you can see the loader text is two types. Like first document have the metadata. Metadata have source and the page content. If we print the whole text dot content, loader text content. No, this is one. Metadata first zero or zero. It will not be zero or zero. Then we have the document, then page dot content, page content, not content, content. Right? Page content. Now it is the total data. So if you have like तेरे पास कोई सैंपल टेक्स्ट फाइल है, तो चाहते है इस टेक्स्ट फाइल को लोड करना, तो कैसे लोड करके? पहले तुझे टेक्स्ट लोडर, क्योंकि पहले कौन सा डेटा तुझे लोड करना चाहते हैं? टेक्स्ट लोडर। सो यू हैव द टेक्स्ट लोडर। सो टेक्स्ट लोडर का फाइल पर दे देना, फिर लोडर डॉट लोड करना, फिर लोड हो जाएगा। अब तू देख, सपोज मैंने इस जो लोडर से, मतलब ये जो टेक्स्ट फाइल में, मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट फाइल को समराइज करना, इसमें क्या है। तो अब क्या करूंगा मैं? एलियन को कॉल कर दूंगा, कॉल एलियन, कॉल एलियन। तो एलियन को कॉल करना तरीका तो सबको पता है, ठीक है। पहले क्या करना? फॉर्म डॉट env इंपोर्ट लोड डॉट env, फिर लोड डॉट env, फिर क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ओएस भी लाना पड़ेगा, फिर ग्रॉक एपीआई की, ग्रॉक एपीआई की इक्वल टू ओएस डॉट गेट env ग्रॉक एपीआई की। अब देख ग्रॉक एपीआई की आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से ग्रॉक एलियन को इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करते हैं? फॉर्म लैंगचेन ग्रॉक इंपोर्ट चैट ग्रॉक। अब मुझे फिर से एलियन पास करना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस एलियन को जस्ट कॉपी कर लें। कहाँ पे है मॉडल नेम? कॉपी कर लेते एलियन को। जस्ट वन मिनट। हो गया क्या? नहीं हो रहा। ओएस डॉट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सेटअप भी करना पड़ेगा। ग्रॉक एपीआई इक्वल टू ग्रॉक एपीआई। अब नहीं, अब तो कोई भी लाइक, लाइक देख मेरा काम है, मैं टेक्स्ट डाटा दूंगा, उस टेक्स्ट डाटा को समरी करके देगा, ठीक है। तो इनपुट क्या का टेक्स्ट डाटा, टेक्स्ट डाटा का क्या कहता है? समरी करना। तो अब कैसे लिखूं बोल? एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा मुझे, टेम्पलेट, ठीक है, जिसमें क्या मैं बोलूंगा, सब टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है। मैं टेम्पलेट में बोल रहा हूँ, समराइज, समराइज
data. समझ द कॉन्टेक्स्ट और डेटा द गिवन, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ द गिवन डेटा और इनपुट, जो इनपुट होगा, और लिख ले डेटा, डेटा कुछ भी इनपुट नाम दे दे, ठीक है, इनपुट। तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, ये तो टेम्पलेट है, टेम्पलेट को प्रॉम्प्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो उस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम लैंगचेन, लैंगचेन डॉट प्रॉम्प्ट इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। फिर क्या करना है, प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट कैसा होते, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो देख, इस ये तो पहले कर दिया था ना, जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे करना है, इस तरह डे टू में किया था। देखा है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, फिर इनपुट वेरिएबल, फिर टेम्पलेट। तो दोनों चीज लगा, एक इनपुट वेरिएबल, एक टेम्पलेट, ठीक है, या तो पहले टेम्पलेट है उसके बाद इनपुट वेरिएबल। तो इनपुट वेरिएबल, कितना इनपुट चाहिए मुझे, देख कितना इनपुट, एक है, तो इनपुट वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ ओनली डेटा। और टेम्पलेट क्या, वही टेम्पलेट, टेम्पलेट इक्वल टू टेम्पलेट। तो प्रॉम्प्ट हो गया। अब मुझे एलएलएम का चेन, चेन क्रिएट करना है। चेन के लिए तो डायरेक्टली ऐसे लिख देगा, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, प्रॉम्प्ट, जब प्रॉम्प्ट होगा फिर एलएलएम, एलएलएम डॉट। अब तो जब भी चेन डॉट इन्वोक करेगा, अब तुझे कहना चेन डॉट इन्वोक, सब रिस्पॉन्स इक्वल टू चेन डॉट इन्वोक, और इन्वोक कर। और इन्वोक में क्या देना पड़ेगा, दो चीजें, एक डेटा, तो डेटा कौन सा है, मेरा पास जो था वो जो लोडेड टेक्स्ट, लोडेड टेक्स्ट, और फिर रिजल्ट दे। अब उसका समरी करके दूंगा, प्रिंट, और नाउ वी गेट द समरी एक्चुअली, कंटेंट समरी। तो उसका क्या लिया, अर्ली लाइक, तो समरी करके दे दिया। तो एक एक क्या था, मतलब एक टेक्स्ट को लोड करना, कोई भी टेक्स्ट डेटा को, फिर उसका समरी जनरेट करना। तो चाहे कुछ टेक्स्ट डेटा दिया, तो अब इसको बोलते हैं समरी इन 4 बुलेट पॉइंट, समरीज इन द 2 लाइन्स। अगर तू 2 लाइन्स में बोलेगा ना, तो ओनली 2 लाइन ही डेटा आएगा। अब देख, अब देख 2 लाइन समरी आएगा। तो पूरे की पूरा डेटा में क्या है, तो ऐसे रीड कर सकते हैं। तो पहले तो टेक्स्ट डेटा लोड किया, फिर इसको समराइज करके दिया। तो कोई भी अगर तेरे पास टेक्स्ट फाइल है, तो उसको लोड करने का तरीका क्या है, टेक्स्ट लोडर। अब उसका उसका ऊपर तो कुछ भी आप लगे तो जो तुझे जरूरत है, मैंने आपको समराइज किया सब बेसिक के लिए। सो डज एनीवन हैव प्रॉब्लम टिल नाउ? हेलो। ना दादा। ओके, अब सपोज, सपोज एक टेक्स्ट डेटा है जो तेरा कोई भी ईमेल में है, ठीक है, सपोज एक टेक्स्ट डेटा, सपोज एक टेक्स्ट डेटा, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट डेटा, सब कोई गिटहब का तुझे टेक्स्ट डेटा लोड करना है, टेक्स्ट डेटा लोडिंग से क्या, एक गिटहब वाले है, ठीक है, मुझे इसको लोड करना है। तो मेरा क्वेश्चन है, इसको लोड करो। फिर इस टेक्स्ट डेटा में क्या आ जाए, सैमसंग गैलेक्सी 2 अल्ट्रा रिव्यू, ठीक है, जो उसका रिव्यू है, और किसका कैमरा। तो मुझे पहले इस टेक्स्ट डेटा लोड करना है। फिर मुझे जानना है इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर कौन सा ब्रांड, प्राइस एंड रेटिंग, मुझे जानना है। तो टेक्स्ट डेटा को पहले लोड करना पड़ेगा। तो कैसे करो, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट है, मतलब टेक्स्ट डेटा ही है, ठीक है, टेक्स्ट डेटा फ्रॉम ऑनलाइन, टेक्स्ट डेटा फ्रॉम ऑनलाइन, टेक्स्ट डेटा मुझे लोड करना है, लेकिन ऑनलाइन से। तो इसके लिए पहले एक लाइब्रेरी लगेगा, इंपोर्ट यूआरएल, हाँ यूआरएल रिक्वेस्ट। तो अब जो फाइल है, ठीक है, जो यूआरएल है, यूआरएल, ये वाला यूआरएल है। अब मुझे यूआरएल फाइल नेम, एक फाइल नेम देता हूँ, ठीक है, मुझे इसको सेव करना है कहाँ पे, सर्च मोबाइल। देख इसका जो एक्सटेंशन है डॉट एम डी, तो सेम एक्सटेंशन रखना है, डॉट एम डी, यहाँ पे मुझे सेव करना है, ठीक है। अब देख यूआरएल भी डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल रिट्रीवर, रिट्रीव। अब इसमें फाइल का जो यूआरएल नाम दे देगा। तो इस फाइल नेम तक यहाँ पे एक फाइल नेम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे यूआरएल के साथ फाइल नेम, फाइल, फाइल। अब देख इधर डॉट,
देख रीडमी एमडी क्रिएट होगा, नॉट नॉट दिस वन, मोबाइल एमडी क्रिएट हो गया। अब मुझे टेक्स्ट डेटा मिल गया। अब मुझे इस डेटा को रीड करके तीन चार चीज फाइंड करना है। पहले नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट का नाम, फिर ब्रांड का नाम, फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो मुझे चार चीज फाइंड करनी इस डेटा से। तो पहले बात, मुझे तो डेटा मिल गया। अब जो डेटा है टेक्स्ट डेटा, तो मैं कैसे लोड करूंगा? टेक्स्ट डेटा का लोड करने का तरीका है, so text loader, so we'll use the text loader for loading the text and give the file name and loader, or you can say loaded text, loaded text equal to loader, loader, loader dot load. So it will load the whole text, and if you can see the length of text or type or directly in the load text. देख देख सोर्स, देख दो चीजें जिसमें मेटा डेटा में क्या होता है, फाइल का नेम, एंड उसके बाद पेज डॉट कंटेंट में क्या होता है, सोर्स। और ये सब चीज क्या होता है किसमें, ये लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मेटा डेटा। इसका टाइप तो देख सकते हैं कौन सा टाइप, ये तो लैंगचेन डॉक्यूमेंट टाइप, अब इसका पहले से बताया था। लोडेड टेक्स्ट क्लास लिस्ट, ये तो लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट। तो पहले का अगर डेटा को लेना चाहते हैं तो लोडेड टेक्स्ट ऑफ जीरो डॉट पेज कंटेंट, तो पूरे की पूरा तुझे डेटा मिल गया। तो अब मैं डेटा से क्या फेच करना चाहता हूँ, इस डेटा से मुझे फेच करना नेम ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड एंड प्राइस एंड रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैं टेम्पलेट क्रिएट करूंगा, टेम्पलेट टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस टेम्पलेट में बोलूंगा, मतलब ठीक है, मतलब टेम्पलेट में रीड द फॉलोइंग, ये एक्चुअली रिव्यू डेटा है, फॉलोइंग डेटा और रिव्यू, ठीक है, एंड एक्सट्रा द फॉलोइंग डिटेल, एक्सट्रा द फॉलोइंग डिटेल्स। कौन से वाला डिटेल्स है मुझे? एक तरह नेम ऑफ द ब्रांड, नेम ऑफ द ब्रांड। और जब भी तू एलएलएम को कुछ समझाना चाहता है ना, मुझे ये चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो अब ऐसा कर देना। देख मैंने क्या किया, ठीक है, ऐसा, ठीक है, एक दे देना नेम ऑफ द ब्रांड, फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, और फर्स्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट, द नेम ऑफ द ब्रांड एंड रेटिंग और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए ना, तो ऐसे, ठीक है, अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे मार्क कर देना, तो एलएलएम ज्यादा समझता है, एलएलएम विल अंडरस्टैंड बेटर। ये कहाँ पे होगा मैं बाद में दिखा दूंगा दो चार एग्जाम्पल में, अभी तो छोटा चीज, अभी ऐसे रख देंगे। तो द रिव्यू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, इस फॉर्म को और भी बेटर कर सकते हैं, फॉर्म जितना तेरा मर्जी, लाइक इनपुट डेटा, कोई भी वेरिएबल दे दे, इनपुट डेटा, फिर से फ्रॉम टेम्पलेट, फ्रॉम निकल टू फ्रॉम टेम्पलेट, फ्रॉम टेम्पलेट। इसमें दो चीज जाएगा, वैसे आउटपुट वेरिएबल होता है, लेकिन मुझे दोनों चीज है, इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल कौन सा चाहिए, इनपुट डेटा, एंड दूसरा चीज टेम्पलेट, टेम्पलेट इक्वल टू टेम्पलेट, और फिर से चेन, ठीक है, ऐसे एलएम चेन से चेंज कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं फ्रॉम एलएम, एक भी ऑप्शन है। और ऐसा नहीं चाहते तो पहले मैं जो किया था ना, अच्छा वही किया था फ्रॉम, और भी एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका छोड़ दो, एलएम ग्रॉक है मेरा। अब अब सेंड कर दे एलएम, ठीक है, चेन डॉट इनपुट, चेन डॉट इनपुट, इनपुट। अब डेटा पास कर दे, कौन सा डेटा, इनपुट डेटा, इनपुट डेटा में कौन जाएगा, लोडेड टेक्स्ट, लोडेड टेक्स्ट। अब एक्स को प्रिंट कर, प्रिंट ऑफ एक्स, देख डॉट कंटेंट, एक्चुअली कंटेंट, देख नेम ऑफ द प्रोडक्ट सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा, इसमें देख, ठीक है, प्रोडक्ट का एक्चुअली नॉट दिस, प्रोडक्ट का नाम सैमसंग गैलेक्सी, तो कौन सा ब्रांड, सैमसंग ब्रांड, तो ब्रांड सैमसंग, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अनफॉर्चुनेटली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नॉट मेंशन, एक्चुअली यहाँ पे देख प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कहीं पे मेंशन ही नहीं है, एंड
And the last rating of the product, the review does not explicitly mention a rating. तो कोई भी रेटिंग ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन यह डिस्प्ले कैसा है वैसे एक समरी जनरेट करता है। जैसे कोई भी ऑनलाइन डेटा को ऐसे रीड करके तो उसका मतलब समरी जनरेट कर सकते हैं, ऐसे रीड करके। तो टेक्स्ट डेटा ऑनलाइन से भी तो देख के उसका समरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो और एक एग्जांपल है, ये तुम लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, और एक डेटा है गिटहब पर, तो इसको लिस्ट करता हूँ। और एक डेटा है, ठीक है, इसमें मेल डेटा है, तो इसको समरी तुम लोग जनरेट कर लेना। ठीक है, और इसमें जब ठीक है मेल में क्या पॉइंट है, कुछ इशू वगैरह है, एक बार पढ़ के, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, टिकट आईडी फाइंड करना। तो ये तुम लोग के लिए काम होगा, तुम लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, होमवर्क এটা তোদের জন্য, ঠিক আছে, এটা তোরা ট্রাই করবি। ইউআরএল and tax, ঠিক আছে, নেম অফ দ্য পার্সন, নেম অফ দ্য পার্সন। এটা এটা দেখ, এটা একটা ইমেল ডেটা, ঠিক আছে, ইমেল ডেটা প্রথমে কি लोड করবি, ठीक है, लोड करा सेम वे, दिस इज सेम वे। फर्स्ट लोड कर लेना, उसका लोड के बाद तुझे टैक्स करना है, मतलब फॉर्म टेम्पलेट में तुझे मेंशन करना है, मुझे नेम ऑफ द पर्सन चाहिए। फिर फिर चाहिए मुझे मेन पॉइंट ऑफ द मेल और सब्जेक्ट ऑफ द मेल, और मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ऑफ द मेल। नेक्स्ट तुझे फेच करना है ये डेटा भी, ठीक है, टिकट आईडी, मेल में टिकट आईडी है, कौन सा टिकट आईडी, and that is this three you need to find from this data. First load the data and do same way. So that is all about the text data. So does anyone have any problem? Hello, hello. Not PDF data. We'll move the PDF data once they have no problem. मेरे पास कोई PDF ही नहीं था। What was your goal for resume? कोई बात नहीं, मेरा resume दे देता। Example. PDF data. Okay, now we want like PDF. PDF product. For the PDF loader, we have the PDF langchain dot document loader import file PDF loader. First thing, PyPDF will not work. So you need to install one library, PyPDF. Because I know, because I have done PyPDF, you need to install this one library. Without installation, it will not work. PyPDF. It will same. You need to install this library, otherwise it will not work. So the same way, nothing different. First, file path, file name, or file path, file path. This one covered. This one I will copy the related path. First file path, then loaded, then loader equal to file PDF loader of file name. It is happened that loaded PDF, and loader dot load. Now you can finish, or you can just loaded PDF. Now you have the PDF, the metadata, producer, context, latex, and the keyword. This one. It will not loaded properly. This type of PDF actually. Loaded PDF. It is loaded but not loaded properly. This type of PDF. It is loaded actually. It is loaded whole content. Okay. First page dot content. If I change page dot content, that is loaded my whole content of the PDF. Like first name,
then university Infosys, in the whole content. So it is loaded. Now after that you can ask anything. It is the loaded. Now you can like make a form template. You can like generate summaries of this PDF data. Or can you tell about is there any like it is good or bad resume? Like now you can make any template. You can make any template and you can ask anything. So that is up to it. Just I am now showing you how can you load it the PDF data. Now after that you can make any template and you can ask to summarize or you can ask anything whatever you want. So it is a PDF loader. Okay. Is there any problem? Next, what if there any PDF content from any no, देख सेम होते कोई भी पीडीएफ का कोई यूआरएल में होगा ना तो उस यूआरएल पे पेस्ट कर देना और ऊपर जो किया ना ऐसे ठीक है ऐसे लोड कर लेना इसको यूज करके नॉट ओनली टेक्स्ट डेटा तो पीडीएफ डेटा कोई भी डेटा इसको लोड कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन पीडीएफ डेटा तो ये पीडीएफ लोडर हो गया तो इसमें किसका प्रॉब्लम कुछ है तो बोलना नहीं तो नेक्स्ट मेरा और भी बहुत सारा डेटा है जैसे सीएसवी डेटा करना है सीएसवी लोडर इमेज लोडर इमेज के लिए तो इस इतना तक इसका कोई प्रॉब्लम हेलो और सबको समझ में आ गया क्या Mira, también son Arnold Burbas in the Algerasis. If you have problem, you can. Because it is important, loader. Because you need to work with any type of loading or document. So you should prepare. Now the CSV loader. Okay. Now move to CSV loader. On the first YouTube loader or Wikipedia loader. One by one. Wikipedia loader. Can go one by one. That means so for the Wikipedia loader, you need to install one library. Click install Wikipedia. You need to install this library. Otherwise, it will not work. You need to install first this library. That's what it is installing. For the Wikipedia loader, we have Wikipedia loader actually from langchain.document. All the loader you can find from the langchain library on the document loader import Wikipedia class also. Like weather data loader. You have weather data, web-based loader, WhatsApp chat loader also present. Wikipedia. You can like search anything like image. I need image caption loader or image or img image loader, image caption loader actually present. So you can find or unstructured image loader. So you have option here. So I am Wikipedia loader. I need Wikipedia loader. Okay. So how it will work? Just listen. You for the Wikipedia loader, just loader LODER loader equal to Wikipedia loader and see. See there is a query. Query language by default is language query and language are loaded document. Basically, this is the Wikipedia loader search in the Wikipedia. The query which query one, any name of the person, anything which is present in the Wikipedia, and the language you want English, Hindi, a number of document, load document, and the load all available document. There's a too many, so just I am giving simple one. Okay, just query calculate. That's what I'll be about engineering. And load document, I give the load max document two. Okay, only two document. I load it. And wiki, just run it. Now the loader, it is Launcher Wikipedia loader, and the loader dot load always the wiki file load loaded loader dot load. So just loader dot load until loaded. And it will take time for the Wikipedia, and you can see the type.
of Wikipedia. That's wait. It will take time for the Wikipedia loader and print the wiki file. That is list and the summary. You can see here, or I'll tell you the short summary. Basically, wiki file loaded of zero. Document metadata. Metadata have the title, third dot metadata. Metadata and the under the there's a no page content. Okay, not dot page content. There's a no page content here. So careful. There's a no page content. Or page. Okay, you have page content also. So it is loaded one document. Okay, you can give the max like 4, 5, whatever you want. So it will be loaded more. Yes, it will take time to load the more document. Just one document. Now you can see the two or three documents. It will take time also because it is first searching the Wikipedia, then it loaded. This one, this one. I have changed it now. Second page. It should be loaded more. Load max document. Okay, I just will check one. So that is the Wikipedia loader. तो विकिपीडिया व्हाट डज व्हेनेवर लाइक तुझे कुछ जरूरत है विकिपीडिया से सर्च करना है फिर उसका समरी जनरेट करना है तो विकिपीडिया लोडर से तू उस विकिपीडिया को सर्च करके फिर एलएलएम को पास कर देगा तो समरी जनरेट करके देगा तो तेरे पास ये ऑप्शन है तो विकिपीडिया ठीक है तू अगर विकी मतलब कोई भी विकी मतलब विकिपीडिया से और ऑनलाइन डेटा कुछ चाहते हैं तो विकिपीडिया लोडर यूज कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी का हाँ नेक्स्ट यूट्यूब लोडर ना कोई भी यूट्यूब वीडियो तुझे लोड करना है यूट्यूब वीडियो ठीक है तेरा काम है तेरा यूट्यूब वीडियो लोड करना है यूट्यूब वीडियो लोड करने के बाद तुझे यूट्यूब वीडियो का समरी जनरेट करना है और तू बोल सकते यूट्यूब वीडियो का कॉन्टेक्स्ट लोड करके मैं उसका समरी डिस्क्रिप्शन टाइटल जनरेट करना चाहता हूँ तेरा टास्क है भाई एक सिंपल तू बोल रहा है एलएलएम प्रोजेक्ट इसमें हर चीज में तू सिंपल सिंपल एलएलएम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है इसमें वो भी स्ट्रीमलीट बना के तो एक बना दिया कुछ इंटरफेस बना दिया जिसमें एक टेक्स्ट लोडर के ऑप्शन डाल दिया एक पीडीएफ लोडर वाला डाल दिया एक विकिपीडिया लोडर वाला डाल दिया एक यूट्यूब लोडर ठीक है तो पहले विकिपीडिया यूट्यूब लोडर तो यूट्यूब लोडर के लिए तुझे एक लाइब्रेरी लगेगा ठीक है वो लाइब्रेरी है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई अदरवाइज इट विल नॉट वर्क फिर इंस्टॉल यूट्यूब यूट्यूब एंड ट्रांसक्रिप्ट is IPG API this library needed एक्चुअली लाइब्रेरी लगेगा नहीं तो रन नहीं होगा विकिपीडिया अच्छा यूट्यूब तो इसको पहले इंस्टॉल मैंने कर दिया तो यूट्यूब लोडर के लिए सेम फिर आप लैंचिंग फॉर्म ओके लैंचिंग डॉट डॉक्यूमेंट लोडर से इनपुट तुझे मिल जाएगा यूट्यूब लोडर यूट्यूब ऑडियो चाहिए या यूट्यूब लोडर ठीक है पहले यूट्यूब लोडर ही देख ले अब देख यूट्यूब लोडर कोई यूट्यूब वीडियो लाएगा चल एक यूट्यूब वीडियो मुझे एक लिंक चाहिए ना यूट्यूब अच्छा लिंक को कॉपी कर लिया ठीक है अब इस लिंक को पेस्ट करते हैं यूआरएल तो एक यूट्यूब वीडियो मुझे लोड करना है तो इस यूआरएल को मैं लोड करूँ व्हाट इज तो अब देख लोडर इक्वल टू LODR लोडर इक्वल टू द यूट्यूब लोडर डॉट फ्रॉम यूट्यूब यूआरएल यूट्यूब लोडर डॉट फ्रॉम यूट्यूब यूआरएल अब मुझे यूआरएल पास करना है यूआरएल पास करना है ठीक है अब लोडर से शुरू नहीं रहेगा अब लोडर डॉट लोडेड करना पड़ेगा तो यूट्यूब ये कैसे यूट्यूब का डेटा होता है और भी तरीका है और भी डिफाइंड वे है यूट्यूब डेटा लोड करने के लिए ठीक है ये तो एक तरीका मैंने बोल दिया डेटा इक्वल टू लोडर लोडर डॉट लोड थोड़ा टाइम लगेगा यूट्यूब लोडर में
ज्यादा टाइम नहीं लेगा तो आप प्रिंट करके देख। यूट्यूब लोडर, यूट्यूब फाइल डेटा, अब देख इसमें तेरा पास डेटा आ गया। ठीक है, अब इसको ही कर, यूट्यूब लोडर डॉट जीरो डॉट पेज कंटेंट, पेज कंटेंट। अब दे देख, जो म्यूजिक है सुपरमैन, ठीक है, वो पूरे के पूरा जो डेटा वो लोड करके दिया। अब दे देख, यूट्यूब लोडर में बहुत सारी चीजें, ठीक है, मैं तो एक तुझे दिखा दिया। ठीक है, ऐसे तो यूट्यूब लोडर डॉट डॉट करके देख, फ्रॉम यूट्यूब यूआरएल एग्जैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट वीडियो आईडी, तो इसका वीडियो आईडी लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, गेट वीडियो इन्फो, गेट ट्रांसक्रिप्ट चांग। अब ये तेरा मुझे तो कितना देखेगा चीज, मैं एक बेसिक बोल दिया जैसे यूट्यूब लोडर को। ऐसे भी और एक यूट्यूब लोडर है, देख यहाँ पे यूट्यूब लिखा है, यूट्यूब ऑडियो लोडर, ठीक है। और एक तरीका है डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट से, वो भी मैं दिखा दूंगा, पहले एक बेसिक तो मैंने दिखा दिया। इज एनी प्रॉब्लम? हेलो? কিন্তু এইগুলো ইউজ করতে কোনো এপিআই কি লাগে না, ডাইরেক্ট না ইউজ না না করা না যায়? না 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 না, এপিআই কি লাগবে না, ইউটিউব লোডার জন্য এপিআই কি লাগবে না, ডাইরেক্টলি লোড হবে, नो नीड एनी एपीआई। तो चाहिए तो और फाइल, ठीक है, कोई और भी यूट्यूब वीडियो लोड कर सकते हैं। अब देख, तू एक काम कर सकते हैं, ठीक है, तेरा नेक्स्ट टास्क होगा, ठीक है, टास्क, ठीक है, ट्राई करना टास्क, ठीक है, लोड यूट्यूब वीडियो, ठीक है, वीडियो एंड जेनरेट, तीन चीजें जेनरेट करना। एक समरी, समरी, सेकंड टाइटल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टाइटल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम द यूट्यूब डेटा एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन समरी होता है, फिर भी कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब और डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब, ठीक है, एक कर लेना, ये तेरा काम है, एक टास्क से टास्क कर लेना, ठीक है। एक यूट्यूब को लोड करा, फिर जनरेट कर गया समरी, तो ये भी तू पोस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, यू कैन पोस्ट इन द लिंक आफ्टर टू। सो यूट्यूब लोडर हो गया, विकिपीडिया लोडर हो गया, अब सीएसवी लोडर, ठीक है, अगर तू चाहते कोई भी सीएसवी फाइल को लोड करना, लेकिन मैं बोलूंगा सीएसवी বলছি, लोडर मत। হ্যালো। बोल। হ্যাঁ বলছি, তোমার ইউটিউবের ভিডিওটা কি প্লে করানো যায় না, মানে ওরকম করে ওটা নর্মাল প্লে ভিডিও আলাদা, প্লে ডাউনলোড করা প্লে পরে? তো আলাদা, প্লে করার জিনিস তো আলাদা, এখানে কেন প্লে করবে, প্লে করার জন্য আলাদা জিনিস, এটা লোডে, এটা কন্টেন্ট লোডের করা, ইউটিউবে যে কন্টেন্ট, প্লেইং থিং আচ্ছা, তো আলাদা, এটা তাহলে ডাউনলোড। তোমার ওটা, তা- হ্যাঁ মানে তাহলে তোমার ওই মানে এইটাতে জাস্ট তুমি ওই ভিডিওটার ডেসক্রিপশনে নিয়ে থেকে কন্টেন্ট দেখে সামারি পার করা, এটাই? হ্যাঁ ভিডিও, হ্যাঁ এটা ভিডিওতে যেটা আছে সেইটা, ভিডিওতে যে পপগুলো হয় না, সেই যে ডেটা গুলো, সেটা হ্যাঁ। ডেটাতে কনভার্ট করি, তো সামারি করে দিবে, তো সামারি করবে, এটা ভিডিওর আচ্ছা, মানে কন্টেন্ট। ভিডিওটাকে পুরোটা অ্যানালাইজ করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও অ্যানালাইজ করি, সেটা কন্টেন্টে ফাইন্ড করা, আরো বেটার একটা ওয়ে আছে, ওটা আমি পরে দেখি। আচ্ছা আচ্ছা এটা তো একটা সিম্পল এ, ঠিক আচ্ছা। আছে, এটা ইউটিউব লোডার, এছাড়া ইউটিউब ट्रांसक्रिप्ट भी একটা বেটার ভাবে হয়, से उससे ज्यादा बेटर है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से, वो मेरे पास है, क्योंकि मैंने थोड़ा काम किया था, वो बाद में दिखा दूंगा, पहले बेसिक वाला देख, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे पीडीएफ बोला, पीडीएफ में इमेज होगा, तो ये वाला काम नहीं करेगा, उसके लिए कुछ और लगेगा, तो एडवांस बाद में, पहले बेसिक वाला दो। और नेक्स्ट सीएसवी लोडर, मैं बोलूंगा सीएसवी लोडर मतलब लोडर यूज कर लेना, ठीक है, लोडर तो सही है, सीएसवी। তো পিডিএফ লোডার বা সিএসভি লোডার যেগুলো তুমি বলছো, এগুলো কি তোমার ডেটা গুলোকে অ্যানালাইজ করে তোমার জাস্ট সামারি বার করা তো? पूरा डेटा, डेटा बार करा, तो पीडीएफ में जब डेटा हो ना, पूरा की पूरा डेटा निकाल देगा पीडीएफ में, कितना अभी तो देखा ना पीडीएफ में, एक पूरा की पूरा डेटा है, तो पूरा डेटा निकाल देने इसका काम है, सामराइज करना नहीं, सामराइज उसके लिए तो एलियम को कॉल करना पड़ेगा, तो इसका काम আচ্ছা। है पूरा पूरा डेटा को মানে लोड करना। এক্সট্রাক্ট করার জন্য ডেটাগুলো। हाँ, एग्जैक्ट डेटा लोड करना, आपकी समरी এক্সট্রাকশন। जनरेट, हाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा, और समरी कैसे जनरेट करेगा, उसके लिए तुझे एलियम को कॉल करना पड़ेगा डेटा देके, तब से तो वही देखा ना, पूरा की पूरा डेटा लोड कर,
जैसे टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट डेटा में क्या था, एक जो डेटा था, पूरा की पूरा जो टेक्स्ट पूरा की डेटा था, पूरा की पूरा डेटा को लोड करना और एक्सट्रैक्ट करना पूरा डेटा को। तो कोई भी फाइल से तो डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, ऐसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका काम है पूरा की पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना, समरी जनरेट करना नहीं। समरी तो फिर एलएलएम कॉल करना पड़ेगा, और कैसे कॉल करना है वो तुमने दिखा दिया ना। वो तो यहाँ पे देखा था, एक टेम्पलेट क्रिएट कर, फिर वो तेरा इनपुट दे, या तुझे क्या चाहिए, कैसे समरी, फिर एलएलएम कॉल कर दे, डेटा पास कर दे, समरी जनरेट करके देगा। चलो यहाँ पे काम है सिर्फ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन। जैसे सीएसवी एक पूरा अच्छा अच्छा डेटा है, ठीक है। जो सीएसवी डेटा से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सीएसवी डेटा के लिए भी क्या है, लैंचिंग डॉट डॉक्यूमेंट लोडर से इम्पोर्ट सीएसवी लोडर। और मैं बोलूंगा सीएसवी डेटा से मतलब मत यूज करना, क्योंकि सीएसवी डेटा एलएलएम को पास मत करना, क्योंकि देखा ना तूने, एलएलएम को जब भी कुछ पास करता है, एलएलएम मैथमेटिकल उतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए अलग टूल लगता है। तो सीएसवी डेटा में एलएलएम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशन होगा ना, वो इन्फॉर्मेशन का भी सही नहीं होता है। तूने देखा हो सपोज कोई भी एग्जाम में, तूने एग्जाम दिया, एप्टीट्यूड दिया, एलएलएम का गलत आंसर आ रहा था, आता है ना, एप्टीट्यूड हमेशा गलत देता है एलएलएम, क्योंकि उसका पास मतलब जो मैथमेटिकल कंपटीशन कैपेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। फिर भी अगर डेटा है सीएसवी डेटा, एक सीएसवी फाइल लगेगा, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक लिंक है सीएसवी, देख यहाँ पे एक सीएसवी डेटा है, सीएसवी डेटा इस लिंक पे, कंट्रोल कंट्रोल देख सीएसवी डेटा, ठीक है। इसमें क्या, वीक्स नाम लीड्स प्रमोशन बजट, ये सीएसवी डेटा। तो मुझे इस डेटा को लोड करना है और एक्सट्रैक्ट करना है, और मैं क्या करूँ, तो कोई भी यूआरएल में होगा तो कौन सा, इंपोर्ट यूआरएल भी, यूआरएल बी डॉट रिक्वेस्ट, फिर यूआरएल, यूआरएल कौन सा है, ये वाला यूआरएल, यूआरएल दे देना। उसके बाद फाइल नेम, कौन सा फाइल में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज लीड्स के लिए फाइल का नेम LEADS लिस्ट डॉट सीएसवी। नेक्स्ट मुझे यूआरएल डॉट रिक्वेस्ट, यूआरएल सॉरी यूआरएल डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल रिट्रीव, कहाँ पे यूआरएल रिट्रीव, एंड पहले यूआरएल का पाथ एंड द फाइल नेम, फाइल नेम। अब रुक जा, अब देख यहाँ पे क्रिएट हो गया लोड डॉट सीएसवी फाइल। अब मुझे इसको लोड करना है, ठीक है। मेरे पास सीएसवी फाइल नहीं था, अब इस सीएसवी फाइल को लोड करना है, तो বলছি कैसे लोड ইউআরএলটা करूंगा। তোমার এটাও দিতে পারবো তো, মানে তোমার ওই ফাইল পাথটা দিতে পারবো তো তোমার ডেস্কটপের ভেতরে हाँ, যে কোনো। सुन फाइल पाथ वो तो ऑप्शनल है, ये चीज तो अगर तेरे पास कोई भी यूआरएल में डेटा होगा और तू इस डेटा को चाहते हैं तो ये करना है, तो ये तो ऑप्शनल, ओनली फॉर द यूआरएल डेटा। तो मेरे पास कोई भी सीएसवी फाइल नहीं था, तब सीएसवी फाइल हो गया। अब मैं इस फाइल को कैसे लोड करूँ, अब मेरे पास फाइल है यार, मेरे पास फाइल नहीं था, उस डेटा को डाउनलोड, एक तरीका है कोई भी डेटा को डाउनलोड करना। अगर तेरे पास ऑनलाइन में कोई डेटा है तो चाहते डाउनलोड करना, तो ऐसे डाउनलोड कर सकता है। ये कुछ ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे पास सीएसवी डेटा नहीं था तो मैंने डाउनलोड कर लिया। अभी मेरे पास सीएसवी डेटा है लोकल में। अब इसका फाइल क्या, लिस्ट डॉट सीएसवी, तो लोडेड करने के लिए फिर सीएसवी लोडर, फिर कुछ नहीं यार, सेम है सीएसवी लोडर, उसके बाद फाइल पाथ, तो फाइल का नेम। अब जो फाइल का नेम है, ठीक है, लीड्स डॉट सीएसवी, ये लोकल का है, ये यूआरएल का नहीं है, लोकल में। अब लोडेड कर ले, लोडेड हो गया। अब ठीक है, अब लोडेड होने से नहीं होगा, लोडेड डॉट सीएसवी। अब तुझे डेटा को चाहिए तो लोडा लोडेड, लोडेड डॉट लोडा, अब तो इसको प्रिंट कर सीएसवी को। अब तेरा डेटा लोड हो गया, देख वन बाय वन पूरा की पूरा डेटा लोड हो गया। द पहले वीक नाम लीड्स एंड प्रमोशन बजट, द पहले था वीक नाम लीड्स एंड प्रमोशन बजट, फिर 176 ऐसा करके था, अब ऐसा करके एक एक डेटा, ठीक है। 176 पहले का लीड्स डॉट सीएसवी, कितना रॉ, सब कुछ लोड हो गया, पूरा की पूरा डेटा। अब जो डेटा लोड हो गया, अब तो इस डेटा से, ठीक है, इसमें डेटा में क्या क्या है तो देख ले। एक तो तेरा वीक नाम, फिर लीड्स एंड प्रमोशन बजट, ठीक है। अब तो इस कोई भी एक टेम्पलेट बना, ठीक है, टेम्पलेट बनाने से तू फाइंड करते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रमोशनल बजट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लीड्स, कुछ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, जो लीड्स का एवरेज क्या है, प्रमोशन का एवरेज क्या है, तुझे फाइंड करना है।
तो एक टेम्पलेट बना ले, एक टेम्पलेट, टेम्पलेट टेम्पलेट में क्या, मैं एलएलएम को सीएसवी डेटा को सेंड करूंगा, और सेंड करके मुझे फाइंड करना है एवरेज ऑफ द प्रमोशन बजट, ठीक है, एंड मुझे फाइंड करना है एवरेज ऑफ द लीड, और यू कैन से लाइक मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ द प्रमोशन बजट और लीड्स मैक्सिमम लीड, कोई भी चीज, ठीक है। और तो ऐसे बोला रीड, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड एक्स्ट्रा द रीड द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ठीक है, बिलो इन्फॉर्मेशन। अब तुझे कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट मैंने बोल दिया, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द कौन सा प्रमोशन बजट मुझे चाहिए, पूरा पूरे के डेटा में एलियन को सेंड करूंगा, पूरे के पूरा डेटा मैक्सिमम ऑफ द प्रमोशन बजट एंड मैक्सिमम ऑफ द लीड्स, लीड्स, और मुझे चाहिए एवरेज ऑफ द प्रमोशन बजट एंड एवरेज ऑफ द लीड। So mention what you want actually use and your context, ठीक है, the data सब input name दे दे एक input। अब इसका फिर से चैट प्रॉम्प्ट बना दे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो देख तेरे पास डेटा है, मैं इस डेटा का पूरा की पूरा डेटा को सेंड करूंगा, और मुझे जो चाहिए वो फाइंड करूंगा, मुझे सपोज इसका एवरेज चाहिए, ऐसे तो पंडा से भी कर सकते हो, तो ऑप्शनल है। अभी एलएलएम से कैसे करना वो मैं दिखा रहा हूँ, एलएलएम से पहले तो इनपुट वेरिएबल लिख दे, इनपुट वेरिएबल कौन सा है, इनपुट डेटा, तो कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है, जो नाम इसमें है सेम नाम देना, इनपुट डेटा। सेकंड टेम्पलेट, आउटपुट वेरिएबल भी है और तो ऑप्शनल है, इसमें नहीं चाहिए मुझे, टेम्पलेट। फिर हो गया, फिर वही चेंज वगैरह करो, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम फिर एलएलएम ब्लॉक, फिर चेंज तो हो गया, अब रिस्पॉन्स आएगा, फिर चेंज डॉट इनवुक। अब तुझे इनपुट डेटा का पास कर, इनपुट पास द इनपुट डेटा। अब इनपुट डेटा क्या है, लोडेड सीएसवी, तो सीएसवी पास कर दे, और थोड़ा टाइम लगेगा एलएम को, ठीक है, टाइम दो। अब देख, अब देख एक प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉट कंटेंट डॉट, देख उसका जो आंसर था, ठीक है, वो तो दे दिया मुझे, ठीक है, देख कोई आंसर नहीं दे पाई, एलिमेंट में एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो एलिमेंट क्या प्रॉब्लम है, मतलब जो सीरीज भी डेटा ना उसको सही से रीड नहीं कर पाता, तो उसने क्योंकि आंसर देने की जगह पांडा फ्रेम दे दिया, तो इसलिए बोला ठीक है एलिमेंट मत यूज करना, इसके लिए एक एजेंट है, सीएसवी एजेंट, तो हैव वन सीएसवी एजेंट, वो बाद में मैं दिखाऊंगा सीएसवी एजेंट। और इसमें the farmer don't give me any knowledge। चलो एक बार देखता हूँ फिर से हम कर पाते नहीं कर पाते, फिर मैंने इसलिए बोला सीएसवी डेटा जब भी लोड करेंगे ना तो उसके लिए सीएसवी एजेंट लाएगा, नहीं तो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, अब दे दिया, ठीक है, अब ये जो आंसर दे दे आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि एलएलएम ठीक है मैथमेटिकल चीज अच्छे से कर नहीं पाता है। अब तुझे देख दे दिया, लेकिन आंसर सही भी नहीं हो सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो एलएलएम देख ये तो मैक्सिमम दोनों फाइंड कर, एवरेज फाइंड नहीं कर पाया, फिर प्रमोशन के एवरेज ऐसे दे दिया, तो इसलिए बोलो कभी मत यूज करना सीएसवी डेटा के लिए डायरेक्टली एलएलएम का मास्क पास करना, उसके लिए सीएसवी एजेंट है, जब मैं एजेंट पढ़ाऊंगा ना देन आई विल टीच यू द एजेंट पार्ट। तो सीएसवी डेटा कैसे लोड करना हो तो वो तो बोल दिया, अब सीएसवी एजेंट जो होगा उसको पास कर देगा, तो उसमें फंक्शन इंप्लीमेंट है पहले से ही। तो किसी कोई प्रॉब्लम इतना तक।
Is there any problem? हेलो। मुझे इमेज डेटा के लिए एक इमेज, ठीक है, इमेज डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, डीएल इमेज। और मुझे इमेज डेटा के लिए एक इमेज चाहिए अच्छे से, जिसमें मैं देख इमेज, इमेज के अंदर ठीक है बिल, ठीक है, पेमेंट। अब देख इमेज, ठीक है, जिस तरह से एक बिल है, तो इसमें क्या क्या है, देख इसमें बिल नंबर, ठीक है, एक अच्छे से डेटा देना, इसमें कुछ लिखा है अच्छे से, इनोवेट है, इनोवेट पेमेंट भी invoice। बस मुझे एक अच्छे से इनोवेट देना। हाँ एक, तो मुझे देख एक क्या है इमेज डेटा, मुझे इससे निकालना है कितना क्वांटिटी है, कितना यूनिट है, कितना टोटल बिल है, मुझे फाइंड करना है इस इमेज से। ठीक है, ये जो इमेज है मुझे इस इमेज से फाइंड करना है कितना, कौन सा चीज है। ठीक है, मैं इसका नाम दे दिया इनवॉइस। देख मेरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो इमेज डेटा है, इस इमेज डेटा से फाइंड करना है कितना क्वांटिटी इसमें, जो इमेज डेटा था, जस्ट 1 मिनट, आई विल ओपन इट देन इट विल बेटर। तो ये इमेज डेटा है, तो मुझे इस इमेज डेटा से फाइंड करना है कितना टोटल अमाउंट है, ठीक है, कितना टोटल बिल है, कितना क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन फॉन्ट न्यू, ठीक है, ठीक, मतलब कौन सा यूनिट प्राइस कितना, किसका किसका कितना लगा। तो मुझे ये सब चीज फाइंड करना है, फिर इनोवेशन डेट क्या है, ठीक है, इसका बिल किसको दिया, शिप कहाँ पे हुआ, ठीक है, मुझे फिर ड्यू डेट, फिर उसका एड्रेस, मुझे ये सब चीज फाइंड करना है यहाँ से। तो पहले तो मुझे इस इमेज को लोड करना पड़ेगा, फिर डायरेक्टली इमेज पास करूंगा तो भी होगा, लेकिन मुझे इस इमेज को पहले लोड करूंगा, फिर इस इमेज से फाइंड करना है। फर्स्ट, फर्स्ट देख तेरे पास टू वे है, इसको सॉल्व करना है, देयर इज टू वे, देयर विल बी टू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। First, you can send the image directly to the, first send the image, ठीक है, send the image, तो इमेज को डायरेक्टली सेंड कर दिया टू एलएम, एलएम को डायरेक्टली सेंड कर दिया, कैसे सेंड करना है वो तो मैंने पहले ही सिखा दिया था, यूजिंग तो चाहते तो जीपीटी यूज कर सकते हैं, जीपी सॉरी गूगल जेमिनाई से, वो तो मैंने कर दिया था, तो उसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड मेथड, फर्स्ट लोड द इमेज, सेकेंड लोड द इमेज, और एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट ऑफ द इमेज, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ द इमेज, मुझे सिर्फ टेक्स्ट को चाहिए, एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऑफ द इमेज, टेक्स्ट ऑफ द इमेज, मुझे इमेज का टेक्स्ट चाहिए, फिर उस टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए एलएम को सेंड करूंगा। सो देयर इज अ टू वे, so first way actually we have done this one, send directly image to the LM using the generative AI, sorry Google Gemini, I have done this one, so I'll not check that one. The second part, just 1 minute, 1 minute. The second part is extract the text of the image. So that is the second part. I will do the second part. अच्छा इमेज के लिए इमेज लोडर है, डायरेक्टली इमेज लोडर काम करेगा पता नहीं, चल चेक करके देखते हैं। इमेज के लिए पार्ट किस तरह से होता है, लेकिन पार्ट एक्सट्रैक्ट में नहीं जाऊंगा, पहले जो इमेज का लोडर है मैं वही देखूंगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट इमेज डेटा, ओके, इमेज, इमेज डेटा, एल एल ओ ए डी। तो इमेज डेटा लोड के लिए मेरे पास क्या है, फॉर्म लैंचिंग, पता नहीं इमेज डेटा काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसे कभी ट्राई नहीं किया। डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके पहले मैं जो ट्राई करता इमेज डेटा लोड करने के लिए वो पाई के सेट चाहिए थी, लेकिन मुझे अब पाई के से कभी नहीं करना है। अनस्ट्रक्चर इमेज लोडर कहाँ पे, अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर इमेज लोडर, ऐसा इमेज लोडर, अगर तू सर्च करेगा ना इमेज लोडर, ठीक है, जैसे इमेज लोडर, इमेज कैप्शन लोडर है, इमेज कैप्शन लोडर है, लेकिन तो इमेज चाहे तो इमेज
कैसे आईएमजी लोडर से नहीं होगा, अनस्ट्रक्चर्ड इमेज लोडर ही करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर इस लोडर को लोड कर ले, इस लोडर को, इस पर इस पर अब इसको लोड कर, ठीक? अब लोडर एलओडीआर लोडर इक्वल टू अनस्ट्रक्चर्ड इमेज लोडर। अब देख इसमें क्या क्या देना चाहिए फाइल पर, ठीक है, फाइल पर एसटीआर फाइल पर, देख फाइल पर इस पे फाइल को, ठीक है, फाइल पर तुझे जो लोड करना है इसमें फाइल पर, मेरा पास फाइल कौन सा है, ठीक है, इनोवेस, तो इस फाइल पाथ को कॉपी कर दे, कॉपी रेटिव पाथ, नहीं क्यों हो रहा है इसमें? अब फाइल पाथ दे रहा हूँ इसमें, इमेज में तुझे पीप इंस्टॉल अनस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस पर लाइब्रेरी होता है इंस्टॉल करना पड़ता है तुझे, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। शायद इमेज डेटा ऐसा काम नहीं करना, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है, अभी मैं ट्राई करूँ फर्स्ट टाइम, मैंने इमेज डेटा डायरेक्टली लोड नहीं किया ऐसे, तो अभी जरूरत भी नहीं पड़ता है इमेज डेटा लोड करने में, मेरे को ये है, ठीक है, जब फाइल के सिलेक्ट नहीं होगी, सर मुझे इमेज डेटा का लोड करना है, फिर मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा, टेम्पलेट में मेंशन करेगा मुझे ये डेटा चाहिए जो एलएम मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा मेरा कॉन्टेक्स्ट से, तो मुझे पहले डेटा चाहिए जो इमेज के अंदर जो टेक्स्ट डेटा है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन, तो मुझे लोड करना है, ये रुक जा, ये सब डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो इमेज कितना टाइम लगेगा, हाँ जस्ट रुक, डाउनलोड होने दो, तब तो बोल किसका कोई डाउट है ऐसे, डाउट और तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या हर चीज, हेलो, हैव यू अंडरस्टैंड? আপাতত ঠিক আছে। टाइम लगेगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना टाइम है বলছি मुझे অ্যারের ক্লাস কবে করাবে গো? तो এরপরে কি पता অ্যারের क्लासই নেবে তো? हाँ, ना टाइम लगा, टाइम लग रहा है हाँ, बहुत कुछ इमेज में, जैसे इमेज में इमोजी है, कैरेक्टर डेटा है, या फिर इमेज बहुत सारी चीज डाउनलोड हो, नेट बहुत स्लो चल रहा है इस पर, डाउनलोड वेटिंग फॉर द डाउनलोड, और जितना टाइम लगा मैं आपको करूँ, देख अगर डाउनलोड होने दे, ठीक है, और डाउनलोड हो गया इसमें लोडर, फिर उसका लोडेड डॉट, ठीक है, लोडर के बाद मुझे डेटा चाहिए, डेटा इमेज, और इमेज डेटा नाम देता है इमेज डेटा, मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे इमेज डेटा का लोड करना है, अभी सेम ही चीज, ठीक है, लोडेड सेम नाम है लोडेड, और लोडर नाम दिया, ठीक है, कहीं पे लोडर लोडेड नाम, ठीक है, उससे देख लेना लोड, अब ऐड करूंगा तो लोड हो जाएगा, ठीक है, तो उसके पहले मुझे कितना डाउनलोड हुआ, 1.6 MB, टाइम लगेगा, ठीक है, डाउनलोड, क्रिप्टोग्राफी बहुत कुछ होता है इमेज डेटा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इमेज डेटा हो गया, सपोज तुम्हें मान लेगा, अब मुझे टेम्पलेट क्रिएट करना, टेम्पलेट, ठीक है, अब मैं टेम्पलेट चाहता हूँ ठीक है, जो डेटा से मुझे फाइंड करना कुछ चीज है, जैसे टोटल भी, ठीक है, जो डेटा है ना, मैं अब देख जो डेटा लोड हो गया, आई पास टू द एलएलएम एंड आस्क सम क्वेश्चन, लाइक लाइक फॉर द डेट ऑफ इनोवेट्स, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन चाहिए बोल, क्या क्या क्वेश्चन आस्क करो, ये ज्यादा बड़ा हो गया, the first question you can ask the total bill, okay, then the name of the biller, और किसको बिल दिया, ठीक है, बिल टू, और एड्रेस, and the second description,
और अमाउंट, टोटल अमाउंट हो गया सब, एंड सेल टेक्स हाउ मच, एंड ऑल्सो द इनोवेशन डेट। ओके, तो इनोवेशन डेट, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में करूँगा। तो इनोवेशन डेट, तो तीन तीन चार क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। रीड द फॉलोइंग डेटा, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड कैसे गिवन बिलो आंसर, बिलो आंसर। तो मुझे क्या क्या आंसर चाहिए? फर्स्ट है टोटल अमाउंट, टोटल मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट। सेकंड, व्हाट वी वांट, कैसे इनोवेशन डेट, इनो इनोवेशन, हम से ना इनोवेशन डेट। सेकंड, कैसे सेल टैक्स। थर्ड, और क्या चाहिए बोल, बोल बिल टू, नेम, नेम ऑफ द बिल। पर्सन, और कुछ चाहिए किसी को बोल। अच्छा ऐसे ঠিক আছে, ऐसे ऐसे তুই এলেকো রোল দিছে ইউ আর, ঠিক আছে, ये डेटा एक्सट्रैक्शन मॉडल, एलियन का एक रोल देना, रोल देगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, डेटा एक्सट्रैक्शन मॉडल। ठीक है, और भी अच्छे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करते डेटा इनपुट डेटा। तो বলছি फिर साथ में তোমার ওই জেমিনি বা গ্রকে যেমন ওরকম ওই মডেল করছিলাম, ওই ডকুমেন্টেশন ওখানে যেমন ছিল ইউজার একটা, তারপর তোমার মডেল हाँ तो हाँ 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 तो মেসেজ हाँ একটা। तो हाँ हाँ तो ओवर डिटीमाइज, ठीक है, तो वैसे तो ऐसा भी दे सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, मैं अभी बोला আচ্ছা ठीक আচ্ছা। है, मेरे डेटा पॉइंट। तो जैसा भी ठीक है, और एक होता है, ठीक है, ह्यूमन मैसेज करके, तो अगर ह्यूमन मैसेज या मैसेज, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन यूज कर ले हो चुका। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा अच्छे से लिख दिया, ठीक है, टेम्पलेट कॉल भी अच्छा कर दिया। लाइक यू आर हाईली एक्यूरेट डेटा एक्सप्रेशन असिस्टेंट, क्या फिर एनालिसिस द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, नेम ऑफ द बिल पर्सन। तो ऐसे एलियम को और भी अच्छा प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। और देख तू अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगा तो उसमें मैसेज, यूजर रोल, ठीक है, तू रोल भी दे सकते, बहुत सारा तेरे पास वही है। चल अब डेटा को फिर से लोड करता हूँ, अब देखो तो, ठीक है, लोडर डॉट लोड, देखते लोड होता कि नहीं होता, पता नहीं होगा। नो मॉडल पाई पीडीएफ मान, अब मुझे इसको भी लोड करना है, पीडीएफ मान कंट्रोल से एक इंस्टॉल। चल डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो फिर से फ्रॉम निकाल दो, फ्रॉम टेम्पलेट, फिर से फ्रॉम टेम्पलेट, उसका क्या लिखूंगा? यहाँ पे दो चीज पास हो गया, इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, दैट इनपुट वेरिएबल नेम इनपुट डेटा, इनपुट डेटा, एंड सेकेंड इज टेम्पलेट, टेम्पलेट इक्वल टू टेम्पलेट। फ्रॉम तक हो गया। अब एलियन चेन कर ले पहले, फिर एलियन चेन भी तैयार कर लेते हो, ठीक है, चेन इक्वल टू फ्रॉम एलएलएम ड्रॉ, चेन भी तैयार हो गया। अब जो मेन चीज वही बाकी है, चल डाउनलोड हो रही, डाउनलोड होने दे। अब डाउनलोड में टाइम लगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो डाउनलोड हो गया, अगर अब नहीं होगा तो कोई और तरीका मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा, होना तो चाहिए। ओपन फाइनाइट यूटिलिटीज, हाँ पता है क्या, ना ओपन फाइनाइट फ्रॉम पीडीएफ यूटिलिटीज। तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, मुझे वो एक्सट्रैक्ट मॉडल, अच्छा तो कोई बात नहीं, ठीक है। आई हैव इमेज डेटा, तो ठीक है, जीपीटी थोड़ा करना स्टार्ट, टेक्स्ट डेटा फ्रॉम इमेज, फिर जीपीटी से कोड देना, ठीक है। देख, वही बोला था, स्पार्क टेक्स्ट से करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। स्पार्क टेक्स्ट कर लेगा तो हो जाएगा।
तो तेरे पास ठीक है, पहले तो इमेज जो डेटा है तेरे पास पाई से होगा, बाकी से नहीं होगा। तो पाई करके तो बहुत टाइम भी लगता है, तो इसलिए मुझे पता था इससे नहीं होगा। चल पाई दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले डाउनलोड होने दे पाई टेस्टर का निकलो, ओपन से पाई पहले से डाउनलोड हुआ है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। इनोवेस, तो इससे तो नहीं होगा तो छोड़ देता हूँ। इनोवेस पीएनजी, मेरे पास पीएनजी पीएनजी अब एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। सीवी टू नहीं लगता, फिर भी लगा था कोई बात नहीं, टाइम लगा, ठीक है। दे हैव यूज्ड द ओसीआर मेथड, इसलिए ओसीआर जो मेथड होता है उसमें टाइम लगता है पाई टेक्स्ट का इमेज टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने में। हाँ फिर भी क्या कह रहा है ओपन सीवी, सीवी टू कलर मुझे नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत देखना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, कि ओसीआर मैंने बहुत पहले किया था, तो थोड़ा जीपीडी से मतलब करके देख लेना, ठीक है इमेज में। तो इमेज देख लेना। अच्छा पहली बात, मेरा इनोवेस यहाँ पे नहीं है, जस्ट वन मिनट, मेरा फाइल पाथ गलत है, फाइल पाथ ही गलत है, फिर तो प्रॉब्लम होगी। कैसे होता है कि नहीं है, टेस्ला इज नॉट इंस्टॉल इन योर पाथ। तो इसमें टेस्ला एक इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इमेज डेटा से। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में इमेज डेटा के लिए मैं खोज के दे दूंगा। तो मुझे जो टेक्सचर होता है ना, ठीक है, उसके लिए मुझे टॉस लाइब्रेरी डाउनलोड पड़ेगा, फिर उसमें से इन्वायरमेंट में पाइथन का एक चीज चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने इमेज को लास्ट में रखा था इमेज के लिए। ठीक है, अच्छा इमेज डेटा है, ठीक है, तुम लोग ट्राई करना, अगर हुआ तो बोलना, ठीक है, मैं नहीं तो कोड सेंड कर दूंगा। तो इमेज में वाला मैं पास अभी छोड़ रहा हूँ इमेज करके, मुझे एक बार इमेज वाला देखना पड़ेगा, फिर बहुत दिन से नहीं किया। और और कोई लोडर लेफ्ट हुआ क्या, लेफ्ट और कोई लोडर इमेज को छोड़ के? विकिपीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, एचटीएमएल एंड वेब बेस्ड लोडर अभी हुआ। कल एचटीएमएल लोडर लिखा था इमेज के लिए, बाद में मैं বলছি कोड अपडेट कर दूंगा। বলছি রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি তে তোমার ওই এটা লিখে দাও না, মানে কি কি তোমার ওই পিপ ইনস্টল করতে হচ্ছে ওটা। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে এচটিএমএল, ঠিক আছে, যেটা ইমেজটা আমি একবার দেখিয়ে বলবো, ইমেজটা মানে অনেক করিনি তো তাই ওটা মনে নেই অ্যাকচুয়ালি, আর ওটা ডাইরেক্টলি লোডার দিয়ে হয় না। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম উইথ দ্য ইমেজ ডেটা, अदरवाइज इट विल बी टू इजी। और स्ट्रक्चर आउटपुट से डॉक्यूमेंट से भी नहीं हो रहा है, क्या ही बोलो। मुझे स्ट्रक्चर आउटपुट करा ना, वो डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। जो मैंने किया ना अभी पहले, जो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर था ना, ये डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट से भी नहीं होता है। सर बार एक बार लास्ट वन बार ट्राई करके देखता हूँ। মডেলটা মানে সাপোর্ট করছে না। वही प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं करते, ये पूरा की पूरा चाहिए डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का डेटा। आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेगा तो भाई क्या करें, मुझे फिर देखना पड़ेगा। कॉपी अब लोडेड करके देखता हूँ, लोडेड डॉट, अब देखते हैं इनपुट, इसमें खुद ही नहीं कर पा, डॉक्यूमेंटेशन भी डॉक्यूमेंटेशन का कोड, डॉक्यूमेंटेशन कोड सही से नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूँ? तो मुझे देखना पड़ेगा। So that is the problem the documents actually can open file name from PDF images। और एक चीज है, और एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट मोड बोल के चीज होता है, उसमें पास करके देखो होगा क्या, पता नहीं, who knows। So that I, एक और चीज होता है शायद एलिमेंट डॉट बोल के कुछ, पर नहीं होगा, ऐसे ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो होना भी नहीं चाहिए। एलिमेंट करके और मोड इक्वल टू सिंगल, मोड से तो नहीं, ट्राई तो कर लो, नहीं होता, डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंटेशन का कोड ही गलत दिया।
तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट एक बार देख के मैं बोल दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसी चीज को एक बार देख के नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा। अब देख नेक्स्ट है एचटीएमएल डेटा, ठीक है, एचटीएमएल जो डेटा को मेरे দেখে पास নেবো, डॉक्यूमेंट যদি নিজে डॉक्यूमेंट করতে पारी করে নেবो। জিপিটি দেখে একটু দেখে নেবো। देख फर्स्ट मेरे पास एचटीएमएल का डेटा नहीं, तो मुझे एचटीएमएल डेटा को लोड करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव एनी एचटीएमएल डेटा, तो मुझे क्या एचटीएमएल डेटा को लोड करना पड़ेगा। तो लोड कैसे करोगे एचटीएमएल को डेटा को, तो मुझे एक एचटीएमएल का लिंक है, और पहले इस डेटा को लिए, इसमें भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, लैंगचेन का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लोडर से इंपोर्ट, ठीक है। इसमें भी बेस एचटीएमएल लोडर है, ठीक है, यहाँ पे देख बीएस एचटीएमएल लोडर। तो पहले बस मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं एचटीएमएल का, तो मेरे पास एक लिंक है, तो उस लिंक से मैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो इससे मैं एचटीएमएल, ठीक है, देख मेरे पास जो एचटीएमएल डेटा है वो कैसे दिखता है, देख ये एचटीएमएल डेटा है। तो चाहे तो इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, या मैं चाहता हूँ डायरेक्टली डाउनलोड, ठीक है, कॉपी नहीं, फिर से मुझे एचटीएमएल डायरेक्टली मैं चाहता हूँ डाउनलोड हो जाए। तो अगर कोई भी चीज तुझे डायरेक्टली डाउनलोड करना है ऐसे यूआरएल को, तो मैंने क्या बोला, यूआरएल भी डॉट रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के बाद तुझे क्या फाइल, फिर यूआरएल को देना है, यूआरएल कंट्रोल, अच्छा मैं उसको कॉपी कर लिया था, कंट्रोल सी, यूआरएल पास कर देना। अब यूआरएल के पास करने के बाद फाइल नेम, कौन सा फाइल में सेव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसी फाइल में इसका नाम देता हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा नाम नहीं दूंगा, ठीक है, जेट, जेट, ठीक है, छोटा नाम देते हैं डेव डॉट एचटीएमएल, और फाइल नेम को कॉपी कर देते हैं, ठीक है, फाइल नेम होगा कंट्रोल सी, कंट्रोल, जैसे फाइल नेम। उसके बाद क्या बोल, उसके बाद नेक्स्ट यूआरएल बॉट डॉट रिक्वेस्ट डॉट, यूआरएल रिट्रीव करके फंक्शन है, यूआरएल रिट्रीव कहाँ पे, यहाँ इसमें, तो यहाँ पे यूआरएल पास कर देना एंड फाइल नेम। तो अब राउंड होने दे, अब देख यहाँ पे देख साउथ एशिया बोल के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया, व्हाट इज, अब इस डॉक्यूमेंट को लोड कैसे करूँ, अब देख लोड करने के बेस एचटीएमएल लोडर, तो बेस एचटीएमएल लोडर से सेम से लोड कर ले, ठीक है, ठीक, लोडर इक्वल टू, फिर बेस एचटीएमएल लोडर। अब इसमें पास कर दे, क्या पास करना, फाइल का पाथ, तो फाइल का पाथ क्या है, फाइल नेम, यहाँ पे फाइल का पाथ पास करना पड़ता है, ठीक है। अब फिर लोडेड एचटीएमएल कंटेंट लोडेड और लोडर डॉट लोड कैन नॉट फाइंड ट्री विल पास डॉट एचटीएमएल, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Do you need a library password? Do you need to install स्वामी, बेस्ट फाइल नेम दे दिया, ठीक है, फाइल का दे दिया, मुझे कुछ इंस्टॉल करना है क्या, पासवर्ड बोल के कुछ होना तो नहीं चाहिए। cannot find a tree builder which features you requested, मुझे तो XML नहीं HTML चाहिए। तो do you need to install a parcel library, ऐसा parcel library कौन सा इंस्टॉल करूँ, हाँ इसको भी देखना पड़ेगा। चल जस्ट फिक्स करना देता, ऐसा क्यों होता है भाई, रन, एक कोड मैंने रन किया था पहले चल जाता है, अब नहीं चलता है, बीच में जो है इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं VM भी यूज कर रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो XML इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कुछ चीजें मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है, सिर्फ इंस्टॉल XML, ठीक है। बिकॉज दैट मैंने इसका पहले जो XML पे इंस्टॉल है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी तो होना चाहिए, फिर भी सेम आप नहीं होना चाहिए, अच्छा फीचर्स भी लेना पड़ेगा, अपडेट कर दिया क्या हर चीज, फाइल में, फाइल नेम के अंदर फीचर्स पे भी देना है, बहुत सारी चीज अपडेट कर दिया, अच्छा अपडेट कर दिया, पहले ये नहीं था, तो बेस एचटीएमएल अब BS क्वाड दे दिया, ठीक है, पहले ये नहीं था,
तो इस क्वेरी में तुझे पास करना HTML पार्सर क्या चाहते हैं नहीं चाहते, ऑब्जेक्ट रन हो गया। तो एक बार देखना, ठीक है, हर चीज तो मतलब বিএস স্কোয়ারসটা কি গো? हाँ ठीक है, वो ऑप्शनल है। इफ तू कौन सा मुझे HTML पार्सर चाहिए तो HTML पार्सर आप देख। अब इससे ठीक है, आप देख तेरे पास पूरा की पूरा डेटा आ गया, डॉट पेज कंटेंट। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा अच्छी अब হচ্ছে HTML कंटेंट तुझे ऐसे ही पास करना है। देख अब तेरा पूरा की पूरा कंटेंट आ गया, HTML नहीं आएगा। अब पूरा HTML में जो डेटा था ना डेटा आ गया, ठीक है, HTML का डेटा अब না पूरा না, আমি डेटा বলছি ওপরে ওইটা কি লিখলে নতুন, पहले ওইটার हमारी ওটা मानेটা কি? ठीक है, इसमें इसका मतलब है तेरे पास HTML पार्सर जो मैं अभी जो डॉक्यूमेंट जो किस तरह का डॉक्यूमेंट HTML का, तो ये अपडेट कर दिया, ठीक है, सिर्फ फाइल नेम देने से नहीं होगा, इसमें तुझे पास करना पड़ेगा। ठीक है, चल अब देख तेरा पास जो जो डेटा था HTML का अंदर पूरा की पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दो। पहले हमारी साउथ एशिया, फिर हमारी ईस्ट था, फिर साउथ एशिया, फिर के हाइलाइट, तो पूरा की पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दो। जैसे HTML पास, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वन वेब बेस्ड लोडर, लास्ट वन वेब बेस्ड लोडर, द लास्ट वन। So this one basically HTML. If you want like you want to load it any HTML data, हाँ तो ऐसे कोई भी HTML को लेके फिर लोड कर सकते हैं। फिर लोड के बाद तुझे जो भी करने तेरा मर्जी, तो कोई भी तो HTML डेटा को ऐसे लोड करके तू उसका कंटेंट दे सकता है। गॉट इट? तो इसमें किसका कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं दादा। that's fine. Thank you, bro. और लास्ट एक वेब बेस्ड लोडर है, वही लास्ट है। उसका लेवे वेब बेस्ड लाएगा, वेब बेस्ड लोडर चाहिए क्या? नहीं चाहिए वेब बेस्ड लोडर। फिर भी सर कर देता हूँ वेब बेस्ड लोडर, ऐसा कर देता हूँ। एक लास्ट है वेब बेस्ड लोडर। सर्च कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में अभी तो मेल ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। हाँ मैं इस वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, वेब बेस्ड। सर ये वेबसाइट देख, कंट्रोल की एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को डेटा मुझे लोड करना है डायरेक्टली वेब बेस्ड लोडर। मैं डायरेक्टली वेब बेस्ड लोडर करके इस वेबसाइट का डेटा लोड कर सकता हूँ, ठीक है। वेब बेस्ड लोडर से मुझे एचटीएमएल नहीं चाहिए। तो वेब बेस्ड लोडर के लिए क्या है मेरे पास, वेब बेस्ड लोडर एक फंक्शन है। तो जो चीज चाहते हैं वही फंक्शन है एक्चुअली। इफ यू वांट एनीथिंग देयर हैव फंक्शन फॉर दैट आल्सो। डॉक्यूमेंट लोडर इंपोर्ट वेब बेस्ड w web based loader. Okay, now I'll give the URL and loaded loaded or loader equal to web based loader and देख वेब पार्ट एंड सीक्वेंस पे बहुत सारा फंक्शन है, क्या चाहते हैं नहीं चाहते। पहले यूआरएल देख के देखते हैं होता है कि नहीं होता है। कैसे लोडेड टेक्स्ट, मैं उसका टेक्स्ट डेटा चाहता हूँ, ठीक है। अब देख ये जो पार्ट है डेटा एक्सट्रैक्शन, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करके तू इसको एलियन को सेंड कर, फिर समरी जनरेट कर। और नेक्स्ट पार्ट मैंने डेटा एक्सट्रैक्शन तो सिखा दिया। अब इसमें भी सेम चीज लगेगा, बीएस कैसे इसमें भी बीएस पहले क्या करें, फीचर्स HTML पार्सर और XML XML features multiple argument features। इसमें क्या क्या है, HTML पार्सर तो है, डिफॉल्ट पार्सर होता है HTML पार्सर, ठीक है, डिफॉल्ट पार्सर। और मुझे इसको चेंज करना है डिफॉल्ट पार्सर। हमारे पास बीएस क्लब तो नहीं होता है ना, बीएस क्लब वेब बेस्ड लोडर के अंदर बीएस क्लब नहीं होता है। तो दिखा बीएस क्लब तो होता है डिक्शनरी करके। अब मुझे HTML पार्सर नहीं चाहिए, डिफॉल्ट पार्सर को मुझे चेंज करना है, ठीक है। डिफॉल्ट पार्सर होता है डिफॉल्ट पार्सर, ठीक है। मुझे चाहिए XML,
लेकिन ये ट्राई करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है, दो चीजें ट्राई करने के बाद ही पता चलता है। इसमें भी क्या आ रहा है, क्विक इंस्टॉल डू नीड इंस्टॉल इसका मुझे एक बार कंट्रोल लाइन चेंज और ये बेस बोला, एक मिनट मुझे देखना है। ये बहुत कुछ चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, इसका पहले तो नहीं था। So it will also be for every problem. सब बीच बीच में देखते रहना, ठीक है, कोई भी चीज चेंज करेगा ना तो देख, इसमें इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं किया, सिर्फ पास कर दिया, हो गया। लेकिन अभी मैं पास तो नहीं हो रहा हूँ, क्या बोल। अच्छा, XML लिखने से हो गया, इससे XML पार्सर मुझे लिखने का जरूरत नहीं। तो पहले तो यही था, ये वाला XML वाला पार्ट, अभी अपडेट करते हैं। বিউটিফুল স্যুপটা ইনস্টল করে না। ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसका भी कोई प्रॉब्लम होता है, फिर इंस्टॉल ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर। ये तो लोड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल पहले से ही था, कोई बात नहीं, कर लो। तो इसका पार्सर में चेंज करते, एक्सटर्नल पार्सर अब तो होना चाहिए। अब तो मैं उसका एक कोड लिखा, फिर से नहीं हो रहा है भाई, पूरा के पूरा एक कोड लिखा, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता सामने से। प्रॉब्लम यही पे होता है, देख, पूरा के पूरा कोड इस कोड में आने वाला है, क्या बोलूं। सर जीपीटी से सही करना पड़ेगा, पूरा पूरी डॉक्यूमेंटेशन का कोड से आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन अंदर भी कुछ चेंज अगर किया तो उसने को बोलना चाहिए ना, क्या चेंज किया। ऐसा इस फ्यूचर को भी मुझे देना पड़ेगा, तो मेंशन करना चाहिए ना, मुझे एक चीज देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। भाई डॉक्यूमेंटेशन ऐसे चेंज करेगा तो काम तो नहीं होगा ना, फ्यूचर नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ওটা আমি দেখে একবার বলবো, কারণ ডকুমেন্টেশন চেঞ্জ করে দিয়েছিল, তো ডকুমেন্টেশন বা ইন্টারনাল জিনিস চেঞ্জ করে না, আমাকে জিনিসগুলো দেখতে হবে, সেগুলো डायरेक्टली হবে না। तो नहीं होना तो चाहिए था, कंट्रोल ए, चल अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, ठीक है। इसमें फीचर्स का एक प्रॉब्लम है, एक फीचर्स नहीं ले रहा है, लेने तो चाहिए। VS Quarks, VX Quarks और VX Quarks, एक मिनट देखने थे, वेटेबल सा वेट VX Quarks कैसे Quarks पर वेटेबल सा वेब पासिंग। सर इसका डॉक्यूमेंट चेंज करना मुझे देखना पड़ेगा इनको। ठीक है, अभी तक इसका कोई प्रॉब्लम है जितना देख लिया, इसका डॉक्यूमेंटेशन में ही चेंज कर दिया, तो मैं लेकिन सही नहीं कर सकता, और डॉक्यूमेंटेशन से नहीं होगा तो मैं क्या करूँ। क्योंकि इसका पहले मैंने किया था, इसका पहले हुआ था, इसका पहले मैंने जब टेस्ट किया था, मतलब बहुत पहले, अभी इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन ही चेंज कर दिया, और डॉक्यूमेंटेशन कभी चेंज होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, ये सब चीज करना। बोल, और किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो क्लास यहीं पे end। আগের দিন যে প্রশ্নটা দিয়েছিলে ওই প্রোডাক্টের ফিচার মিচার ওইগুলো কি এআই দিয়ে জেনারেট করাতে হবে নাকি ইউজার ডিফাইন্ড হবে? না না, মাত্র আমি বলেছিলাম না, তিন চারটি ইনপুট হবে, বাকি তো ইয়ার সিকোয়েন্সিয়াল চেঞ্জ ক্রিয়েট করেছে না তুমি, সিকোয়েন্সিয়াল চেঞ্জ, তো সিকোয়েন্সিয়াল চেঞ্জ কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় আমি সেটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম, ইফ আই এম নট রং। ঠিক আছে, সিকোয়েন্সিয়াল চেন ক্রিয়েট করতে, বুঝলি, চেন, আর চেন কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় সেটা দেখিয়েছিলাম তোকে, এভাবে চেন গুলা ক্রিएट करते हैं, LLM चेन, देन यू नीड टू क्रिएट द सीक्वेंशियल चेन। तो ऐसे तो सीक्वेंशियल चेन क्रिएट करना पड़ेगा, तुझे LLM को बोलना पड़ेगा तू क्या चाहता है, कैसे चाहता है, फिर दो चार मतलब तीन टोटल सीक्वेंशियल चेन क्रिएट करनी पड़ेगा।
तो डे टू अगर अच्छा तूने डे टू का रन किया ध्रुव ना ध्रुव হ্যাঁ করেছি। হ্যাঁ ডে টু রান করলে তো হওয়ার দরকার ছিল হ্যাঁ ডে টু তে যেভাবে করেছি না সিকোয়েন্সিয়াল যে আমি দুটো তিনটে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম सेम ওয়েতে দিয়ে করতে হবে सेम ওয়েতে हाँ इसका नहीं होगा मुझे देखना पड़ेगा ये वाला part।